وہ حوالہ نکالیں گے، یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر ہم 19ویں آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے جی۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے جس کسی کو بھی خدا کا روح ابھارتا ہے وہ سامنے آئے اور خدا کے کلام کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کرے۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر یسوع کو یروشلم میں آتا ہے کھجوروں کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے، اے سیون کی بیٹیوں مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ بس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے، جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردے میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ بس فریسیوں نے آپس میں کہا، سو چاہو تو تم سے جو کچھ نہیں بن پڑھنا تھا، دیکھو جہاں اس کا پیرا ہو چلا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین آمین۔ زور سے کہیے گا آمین۔ آج میں نے آپ کو بتایا آج کا دن کھجوروں کے اتوار سے منسوخ ہے، اور آج ہم کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں اور یہ خداوند یسوع مسیح کے شاہانہ استقبال کی عید ہے۔ اور یہ عید کیوں ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ ہیکل میں آتے ہیں، اور وہ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ لوگ اس کو بادشاہ تسلیم کریں۔ اس وقت یہودیوں کی سب سے بڑی عید، عید فصح منائی جا رہی تھی۔ بائبل مقدس کے مطابق یہودی جو خدا کی بنت قوم ہے اور جو سمجھتی ہے کہ ہم ہی خدا کے کاپی رائٹس رکھتے ہیں اور خدا جو یہوہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے وہ صرف اور صرف ہمارا ہے، اور دوسرے جو نکمے کافر اور سب کچھ ہے، ہم ہی خدا کی بنت قوم ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور وہ صحیح بھی سمجھتے ہیں لیکن یہ غلط سمجھتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل آج ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ خدا بنی نوع انسان کا خدا ہے کہ نہ صرف اسرائیل کا، ہاں خدا اسرائیل سے پیار کرتا تھا، کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ یہ ایک ڈبیٹ الگ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل قوم جو یہودی ہیں وہ 7 عیدیں اور 5 قربانیاں خداوند کے حضور پیش کیا کرتے تھے، اور ان 7 عیدوں میں سے ایک بہت بڑی عید ہے جو عید فصح ہے۔ یسوع مسیح ہیکل میں، یروشلم میں ہیکل میں اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ عید فصح کو منا سکے، لیکن جیسے ہی وہ یروشلم میں ہیکل میں آتے ہیں تو لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں کھجوروں کی ڈالیوں سے، ان کو اپنا خداوند مانتے ہیں، کیونکہ اس وقت خداوند یسوع مسیح کی جو پبلسٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہوتی ہے۔ اور اس واقعے سے پہلے اگر ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو اس نے ایک بہت بڑا معجزہ کیا تھا جو یہودیوں کے نزدیک نہ صرف بلکہ بنی نوع انسان کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا۔ وہ معجزہ جو آج تک کسی انسان نے نہیں دکھایا تھا، اور وہ معجزہ یہ معجزہ تھا کہ اس نے کیا کیا کہ لازر کو جو مریم اور مارتھا کا بھائی تھا اور جس کو قبر میں پڑے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی الہی قدرت سے، مافوق الفطرت قدرت سے، خدا کے دیے ہوئے اختیار سے اس کو قبر میں سے زندہ کر دیا، اور وہ کفن سمیت قبر سے باہر آ گیا۔ یہودیوں کے نزدیک اور خاص طور پر یہودیوں کا ایک فرقہ ہے جو فریسی فرقہ ہے، اس کے نزدیک یہ بات بڑی ہی اہمیت کی حامل تھی،
क्योंकि ये एक अजूबे से कम नहीं थी, ये बात एक मौजज़े से कम नहीं थी। और वो क्या करते थे कि वो देखते थे कि यीशु ने ये कर दिया, और जब लाजर को खुदा जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, अगर मैं खुदा कह दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो अकेला ही खुदा है, बल्कि वो तसलीस का दूसरा शख्स है, तो खुदा बेटा भी है। तो जोशे खताबत में लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है कि खुदा का लफ्ज निकल जाए, लेकिन मैं फिर भी खुदा यीशु मसीह कहूंगा। अब ये है कि जब खुदा यीशु मसीह नासरी ने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया, तो वो वहां पर एक बड़ा सा जमे गफीर था, और लोग देखना चाहते थे कि ये जो शख्स जो यीशु नासरी है, जो यूसुफ बड़ाई का बेटा है और जो मरियम का बेटा है, और इनके बहन भाई जो हमारे घरों में काम करते हैं, और ये अपने आप को रब्बी कहलवाना पसंद करता है, ना सिर्फ रब्बी बल्कि ये क्या करता है, अपने आप को कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ, तो खुदा मुझ में से होकर अपना आप जाहिर करता है। तो आए हाँ जिसकी करमात को देखते हैं, वो जब अपने जलाल को पहुंचता है और कब्र पर जाता है, और जब वो लाजर को पुकारता है, तो लाजर कफन समेत बाहर आ जाता है, और 4 दिन का मुर्दा आज तक कोई भी जिंदा नहीं हुआ है। इस बात से दुनिया तक दूर तक शहरों में खुदा यीशु मसीह की मशहूरी हो जाती है, पब्लिसिटी हो जाती है, और लोग समझते हैं कि ये वही यशवा मिसाया है जिसके बारे में हजारों साल पहले प्रोफेसीज की गई हैं, और दरहकीकत वो वही था। लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग खुदावंद को अंडरस्टैंड करने के लिए नाकाफी थी, क्योंकि वो समझते थे कि जिस तरह दाऊद जो इस्राएल का बादशाह हुआ है, उसी तरह ये बादशाह भी आएगा और हमें रोमन अंपायर से आजाद करवाएगा, और हम अपने बादशाह को तस्लीम करेंगे। हम गुलामी के जुए में नहीं जुटेंगे, बल्कि हमारी एक आजाद रियासत होगी, और हमारा उसका एक अपना हुक्मरान होगा जो यहूदियों में से होगा। यीशु बादशाह तो था, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरी बादशाहत जमीनी है। वो कहता था कि मेरी बादशाह जमीनी नहीं बल्कि आसमानी है। जिस तरह आज बहुत सारे लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, खुदा के लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसी तरह खुदा यीशु मसीह को भी ना कदीम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, और वो समझते थे कि यीशु गलत है और हम सही हैं। हालांकि यीशु सही था और वो गलत है। जरूरी नहीं कि जो आप सोचे वही सही हो, कभी गलत भी हो सकता है। अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। हालेलुया। अब वो यीशु मसीह को बादशाह तस्लीम कर रहे हैं। अरे यीशु को बादशाह कहने से वो बादशाह नहीं हो जाएगा। अरे बादशाह ही होता है, बादशाह होता है। और वो सिर्फ बादशाह नहीं था, बल्कि बादशाहों का बादशाह। आमीन। और लोग यीशु मसीह तो ईद फसह मनाने के लिए आए हैं, लेकिन लोगों ने उनको अपना बादशाह तस्लीम कर लिया है। अब ये वही लोग हैं जो इस इस्तकबाल से पहले यीशु मसीह के बारे में गॉसिप करते थे, बुरी बातें करते, जिस तरह आज हम एक दूसरे के बारे में अपने घरों में करते हैं, गली कूचों में करते हैं, बाजारों में करते हैं, अपने रवैयों से ज़ाहिर करते हैं कि इतनी इज्जत होती है, हम एक दूसरे की करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से करते हैं कि लो जी है ताकि उगा दीजिए। तो यीशु मसीह के बारे में भी ऐसा लोग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 4 दिन का मुर्दा जिंदा किया यीशु ने, वही लोग जो उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे, वो खजूर की डालियां पकड़ के, खजूर की डाली दीजिएगा मुझे, एक खजूर की डालियां देख के वो उसको अपना बादशाह तस्लीम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बादशाह तस्लीम कर रहे हैं। और कुछ लोग तो कपड़े अपनी अकीदत का और इज़हार, जिवें बड़ा ना चापलूसी लाई दी एक दूजे ਨੂੰ अपनी मोहब्बत ਦਾ इज़हार करना ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬत है। ये सुमसीना भी हो जाए ना अपने कपड़े ला के कि पोता मैं पोता नजर आवा, कपड़े ला के हेलो हेलो थले आ, तब मोहब्बत वेने के गो बात की मोहब्बत आती है, वेने मोहब्बत किवें आती है ना। अब वही लोग यीशु मसीह को के नीचे कदमों के नीचे अपने कपड़े बिछा रहे हैं। अब ये मोहब्बत ऑलवेज नहीं है, ये मोहब्बत हमेशा की मोहब्बत, जिस तरह साडी मोहब्बत हमेशा वास्ते नहीं ना होंदी।
ਬਈ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਦਰਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਗਾ, ਨਜਾਤ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੂਦਸ਼ਾਹ कोई नहीं है। अब जो लोग इससे पहले शाहाना इस्तेमाल से पहले बुरी बातें कह रहे थे, जैसे ही यीशु ने मुर्दा जिंदा किया सारे पैरोकार हो गए, कपड़े ला के इज्जत कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी इज्जत कर रहे हैं। अब जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को एक्सपोज किया उनके सामने और उनको ये कहा कि जी मेरी जो बादशाहत है वो जमीनी नहीं है बल्कि, तो वही लोग हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, वही लोग क्या कह रहे हैं? पिलातुस ने कहा मैं अपने हाथों को धोता हूं और क्या करता हूं, इसमें कोई बोले ताले खोल दे, मैं इसमें कोई, तो वही लोग जेड़े कपड़े ला के कह रहे बादशाह, यहूदियों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, कह रहे ना कि डाकू नू छड़ दे, एक डाकू नू छड़ दे, की कर दे ते एनू सूली चाड़ दे, एनू सूली चाड़ दे। ये मोहब्बत थी, ये मोहब्बत थी। इसी तरह जिस तरह हमारी मोहब्बत होती, इसी तरह। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही? वही लोग थे, वही यहूदी थे जो पल में तोला और पल में मासा हो जाते थे, लेकिन वो ये समझना भूल गए जो बादशाह था वो बादशाह है और बादशाह रहेगा। हाँ वो यीशु मसीह था, हाँ वो यीशु मसीह है। हाँ आप होशाना के नारे लगा रहे हैं कि होशाना का मतलब जो होता है कि हम पर रहम कर, हमें बचा ले, हमें नजात दे। और जब वो लोग होशाना के नारे लगा रहे थे जो यहूदी थे, तो लोग उसको मना भी कर रहे थे। तो खुदा ने यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात वहां पर कही। उन्होंने फकीर फरिश्तियों से कहा आज तुम इन लोगों को मेरी तारीफ करने से, होशाना के नारे लगाने से मना कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं अगर ये चुप कर गए तो पत्थर चाल उठेंगे और होशाना के नारे लगाएंगे, कहेंगे कि हम पर रहम कर, हमें बचा ले, हमें नजात दे। वो सिर्फ इंसानों का खुदा नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ एक या दो लोगों का पादरी नहीं हूं, सबका पादरी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मेरे लिए सारे इक्वालिटी रखते हैं। खुदा सबका खुदा है, वो सबका खुदा है। वो कहता है पिलाए बोझ से थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, भाई मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। हालेलुया। ईद फसह जब मनाई जा रही थी तो आम रूटीन में वहां पर जो लोगों की तादाद होती थी वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थी, 3 से 4 लाख तक, 3 से 4 लाख तक वहां पर लोग ऑन द स्पॉट मौजूद होते थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब ईद फसह के मौका पर यरूशलेम की जो आबादी है वो बढ़ जाती थी। आम रूटीन में यरूशलेम की जो आबादी होती थी वो कितनी होती थी, 3 से 4 लाख तक। लेकिन ईद फसह के मौका पर 10 से 12 लाख तक बढ़ जाती थी। लेकिन ज्यादातर जो फिलोसफर है, जो मौलखीन है, वो नई बात करते हैं, वो कहते हैं ना तो 10 से 12 बल्कि 20 लाख से ज्यादा लोग वहां पर जमा हो जाते थे, क्योंकि पूरी दुनिया में यहूदी है। तो यहूदी इसराइल में, यरूशलेम में, हैकल में ईद फसह मनाने के लिए आते थे। अब 20 लाख लोग एक बहुत जो है वो लोगों की जमात है, बहुत बड़ी लोगों की जमात जिसका हिसाब ही नहीं है। वो सारे खुदावंद यीशु मसीह के पीछे क्या चल रहे थे और होशाना के नारे लगा रहे थे। क्या कह रहे थे? होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना, 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 होशाना। होशाना तब कहते हैं कि जब आप उसको अपना खुदा और खुदावंद तस्लीम कर लेते हैं। और उसका मतलब है रहम कर, हम पर रहम कर, हमें बचा ले, हमें नजात दे दे।
गुलामी से नजात देते, अपने बादशाह को ये कह रहे थे। और वो बादशाह कौन था? कौन था? Praise the Lord। वो बादशाह खुदा यीशु मसीह था। मेरे अजीज बहन भाई, मौका मिला तो हम और ज्यादा इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, तो बहुत ज्यादा आगे बातें हैं। तो टाइम को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमने इस बात को कभी देखना है कि हमने इबादत को टाइम पे खत्म करना है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आज जरूरत है इस पाम संडे के मौका पर भाई यीशु को अपने दिल का बादशाह गोड़री होनी है जिन्हें बढ़नियां बंद कर दो। यदि वह इनकलाब से खराबियां पैदा होंगी हैं। आप उस लोग शख्स को अपने पास बिठाए जिससे आपको सख्त नफरत है, हालांकि होनी नहीं चाहिए। आप उस शख्स को अपने गले लगाए जिन्हों वेखना ही तुसी समझते गुनाह हो गया। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अगर कोई एक कदम आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आप 4 कदम बढ़ना शुरू करना कि 2। अपने आप को झुका लें, अपने आप को नीचे करें, कुछ नहीं फर्क पड़ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ गया। अपनी सहेलियां लब लब के कोल बहना, उन्हें नाल गल्लां करनियां, गोसप करना है, उन्होंने अपनी सुनानियां उन्हें सुनानियां ते उन्हें भी कन्नां दे विचों कलाम दी गल्लां कढ देनियां कि लो जी मैं भी नहीं सुनदी भी, मैनू की है तू भी ना सुन। चर्चिस में ऐसा भी होता है। उन्हें कपड़े के बारे गल्लां करनियां, उन्हें कपड़े के बारे गल्लां करनियां, अपना आप ज़ाहिर करना, उनका आप ज़ाहिर करवाना। प्लीज ये चीजें बंद कर दीजिए। खुदावन को अपना बादशाह तस्लीम कीजिए, उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और उसको मानिए। सिर्फ लफ्जों से ये जुलूस की अहमियत नहीं बढ़ेगी, आपके अंदर वो जज्बा आना चाहिए। जब हम ये जुलूस निकालते हैं जिसकी आवाजें आपके कान तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम इकरार करें कि बादशाह का बादशाह अच्छी बात है, हमने भी किया है, लेकिन सिर्फ ऐसा करना ही काफी नहीं है। ऐसा करना ही काफी नहीं है। दिल का बादशाह बनाए, लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर दे, अपने आप को कम कर दे। बस 5 मिनट वास्ते कट करना, उसमें मैं कौन तू खाम खा। अपने आप को झुका लीजिए, वैसा आजिज़ कर लिए जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने आजिज़ी की। अभी गधे के ऊपर बातें थी, खजूर के ऊपर बातें थी और बहुत सारी जो हिस्टोरिकल बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी थी। क्योंकि आप टाइम पे नहीं आए, आप महाराजा हैं, आप चाहते हैं कि मतलब हम अपनी मर्जी से आए, तो मैं चाहता हूं कि आपने जो सबसे अहम जो इबादत का हिस्सा था उसको मिस किया है और कहीं ना कहीं आपने मुझे मजबूर किया कि मैं इसको ख़त्म करूं, हालांकि ख़त्म नहीं करना चाहिए था, इसको आगे कंटिन्यू। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग सुनना चाहते हैं और बहुत सारे लोग तक कार चलिए लड़ाई झगड़ा करिए, जाके लड़ाई झगड़ा करिए। मुझे ऐसा भी पता है और वो होगा और होना वाजिब है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ लड़ाई झगड़ा ना करना चाहिए, बुरा भला ना कहना किसी को। आज यीशु बादशाह दी है, हालेलुया। आज बादशाहों के बादशाह की है, हालेलुया। अच्छा सोचे, अच्छा खाए, अच्छा पहने और उस बादशाह को जो बादशाहों का बादशाह है उसको अपने दिल का बादशाह तस्लीम कर ले। कहीं आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने रहा। अरे आंखों को बंद कर लूं, साड़ियां अखां किवें बंद हो गया, कोई और रहिंदा भाई पहले उन्होंने कटोगे तो बन जाना। अज तो बाड़ियां कुछ होर गल्लां होंदियां ने, सानूं तो चंगे ही लोग लगदे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो प्लीज ਜਦੋਂ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अपने आप के अंदर आज का खजूरों का इतवार का जो मेन हासिले निचोड़ जो पैगाम है वो अपने आप को कम करना है, अपने आप में आजिज़ी पैदा करना है, इनकसारी। लेकिन मैं आपको ये जरूर बात बताऊंगा, इनकसारी का मतलब ये नहीं कि आपकी इससे नफ्स को मजरू करे। अंडरस्टैंड करना, दोनों चीजों को अलग अलग रखना है। अगर ना समझ आए तो मेरे को समझ नहीं आती, क्योंकि मैंने भी किसी से समझी है। ऐ नहीं कि आकड़ का एक लखोंदे रहना, लो जी मैंने कोई नहीं बुला रहा तो मैं क्यों बुलावा। हर बात का कोई मतलब होता है, हर बात में कोई बात होती है। जब मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उसके पीछे कोई बात होगी है। लेकिन हमारे जो दोस्त है नाक कदीम, वो आप भी उस्ताद बन जाते हैं बड़े, वो मैंने सिखाना शुरू कर देंगे। तो मुझे मत सिखाइएगा, आप समझिएगा, हालेलुया। और बात यह है कि आजिज़ी, इनकसारी और फरोतनी और हलीमी का मुजाहरा कीजिए। आज का दिन झुक जाने का दिन है, आज का दिन अपने आप को ऊपर से नीचे करने का दिन है। आज का दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को आजिज़ बनाया और आजिज़ बनाया
सवारी की, और उसका मतलब ये था कि वो लोग जो उनका बादशाह तस्लीम कर रहे थे, लेकिन उसने गधे के ऊपर सवारी इसलिए की क्योंकि गधा उस वक्त जो था हकीर जाना जाता था। और ना सिर्फ गधे पे सवारी करने का मकसद ये नहीं था कि वो हकीर जाना जाता है, बल्कि जब हम ज़करिया का सहीफा पढ़ते तो वहां पर उसकी प्रॉक्सी हुई थी, तजस्सुम की जो तकमील थी वो ऐसे ही होनी थी। और यीशु मसीह प्रॉक्सी नबूवतों की छत्र छाया में परवान चढ़ रहा था, इसलिए जब उसने कहा कि तमाम हुआ तो वो तमाम नबूवतें भी तमाम हो गई जो उसके बारे में कही गई थी। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको खजूरों का इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा में यीशु मसीह की, हाथों को खड़ा करके खुदा में यीशु मसीह की, बादशाहों का बादशाह खुदा में यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, जोरदार तालियां कम है, तालियां कम है मेरे अज़ीज़ों। हालेलुया, हालेलुया।